Namaste and welcome to Simple Education. So in this video we are going to solve one more sum related to calculation of mean. So this is sum number 2. Sum number 1 already हमने किया हुआ है by using the same formula which is said as step deviation method. ठीक है, इसको sometimes it is also considered as assume mean method. So as per the instructions of your teacher, follow the formula whichever is been asked to be used in your sum solving. Okay, so let's start and understand how this particular formula can be used to calculate the mean score. Fine, so let us come to our question. So this is our question. Observe the given frequency distribution table and calculate the mean of the distribution and interpret the result. तो आपको ये frequency table दे रखा है जहाँ पे class interval और frequencies दे रखी है एंड आपको मीन कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ आपको इंटरप्रेट द रिजल्ट भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट एक देख लीजिए कि क्लास इंटरवल हो सके तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, इट विल बी हेल्पफुल. फाइन, इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट्स गुड. तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सो वी विल टेक द सेम थिंग. फाइन, सो यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं. तो दिस इज आवर सोल्यूशन. नाउ आपका जो फॉर्मूला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है. सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, इफ यू विश you can write these details, otherwise it's not compulsory. Fine, let us move down and come to our actual sum solution. ठीक है, तो as said class interval already दे रखा है, तो आपने ये कॉलम बना दिया class interval का. also frequency already दे रखी है, तो this is blue color में जो है वो already question में दे रखा है. fine, add four more columns, that is we need to find out the midpoint of the class interval, that is x. We also need to find out the deviation. We also need to find out x dash and दोनों, दैट इज फ्रीक्वेंसी और एक्स डैश का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो ये चार कॉलम्स बना लीजिए विच विल बी हेल्पफुल टू अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉलम्स बना लीजिए एंड देन यस डू फाइंड आउट एन. एन इज नथिंग बट ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उसका टोटल स्कोर है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी है, समटाइम्स एन इज ऑलरेडी गिवन, समटाइम्स इट्स लाइक कि वी नीड टू ऐड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज एंड फाइंड आउट एन. So I have already written n equals to 50 by adding all these things. ठीक है, after finding out n, what we are going to do is we are going to find out the midpoint of class interval. ठीक है, क्यों midpoint of class interval चाहिए? because यहाँ पे हमें deviation find करने के लिए ये midpoint of the class interval की ज़रूरत पड़ेगी, also assume mean की ज़रूरत पड़ेगी. तो therefore we are going to find out midpoint of the class interval जहाँ पे हमें assume mean भी पता पड़ जाएगा. So how do we find out the midpoint of the class interval? That is lower limit plus upper limit divided by 2. Now this particular formula remains same for the class interval जहाँ पे continuous class interval दे रखा हो. ओके, इन दिस continuous class interval नहीं है. ठीक है, अगर आपका continuous class interval है, say for example यहाँ पे होता 89.5 and 99.5, यहाँ पे होता 79.5 and 89.5, यहाँ पे होता 69.5 and 79.5. so that means कि ये continuous class interval चल रहा है. तो even if it is continuous class interval और right now इस तरह का जो class interval दे रखा है, वहाँ पे आपको for finding out the midpoint of the class interval you can use the same formula. तो lower limit क्या है, ये 90 है, एंड अपर लिमिट क्या है, ये 99 है. ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 189 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, प्लीज टेल. यस करेक्ट, 94.5. फाइन, तो सिमिलरली ये सभी क्लास इंटरवल्स का हमें मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल निकालना है. सो प्लीज स्टार्ट. 80 प्लस 89 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, प्लीज टेल. यस करेक्ट, 84.5. इस तरह से हमें सबका करना है एंड इफ वी हैव दिस विजिलेंस, हमें समझ में आ रहा है कि अरे ये कंटिन्यूसली 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट. ठीक है, क्योंकि वो राइट होगा. इट्स लाइक 74.5 यहाँ पे आएगा, देन इज 64.5 will come over here and so on and so forth. ठीक है, सो इस तरह से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करिएगा कि दोनों, दैट इज
लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को ऐड करिए, जैसे कि 50 प्लस 59 डिवाइड बाई 2, दैट इज 109 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 54.5। ओके, सो ये 54.5 ग्रीन से क्यों लिखा है हमने, वी विल सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा करेक्ट 44.5, देन इज यस राइट, वापस 10 माइनस कर दीजिए तो 34.5 आएगा। Next number 24.5, and do recheck by adding the numbers, you will get the same thing. And the last number अगर आप देखेंगे 10 plus 19 29, 29 को अगर हम divide by 2 करते हैं then how much we will get, yes correct 14.5. So these are the numbers, so these are the class intervals का midpoint we are getting, see over here, बहुत easily मिल जाएगा आपको। fine, अब हमें क्या करना है, now we are going to move towards deviation। तो deviation find करने के लिए we need assume mean। so assume mean किसको consider करेंगे, assume mean as said earlier it is nothing but the midpoint of the class intervals। ठीक है, तो midpoint of any midpoint of the class interval you can consider as assume mean। otherwise what we can do is, प्लीज सी ओवर हियर, ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग इन द मिडल, ठीक है, ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करती हूँ 8 as a biggest frequency as well as it is coming in the middle of all the frequencies given, okay, so what I will consider this class interval जो कि midpoint of the class interval है as my assume mean। तो आप इस तरह से इसको भी assume mean consider कर सकते हैं। so in this particular sum we are considering 54.5 as assume mean। now हमें हमारा assume mean मिल गया है, so down we can mention over here, सी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 54.5 एज अज्यूमिंग, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, बट एज सुन एज यू गेट योर अज्यूमिंग डू राइट इट डाउन। ठीक है, सो अब आते हैं हम यहाँ पे अज्यूमिंग के अंदर, दैट इज डिविएशन कितना है। तो आपका जो क्लास इंटरवल है उसमें से अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट द डिविएशन। सो एक मैं करके बताती हूँ, 94.5, ठीक है, जो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल है दैट इज एक्स minus 54.5. So just subtract it. How much you are getting? Please let me know. So yes, 94.5 minus 54.5 जो कि हमारा assume mean है, तो we will be getting 4040. Fine. Next is 84.5 minus 54.5 कितना आता है? Just check. Yes, correct. It's 30. Similarly, अगर आप करते जाएंगे again जो deviation है, that is difference between class intervals है 10 numbers का है, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। देखिए 64.5 minus 54.5 will give us 10। फाइन, अब 54.5 भी मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है, ऑल्सो यही अज्यूम मीन भी है, तो दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, 54.5 minus 54.5 we will get 0। now the things will change a little। what happens is आपका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, x minus am that is मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल माइनस अज्यूम मीन। ठीक है, तो अब ये जो नीचे के नंबर्स आ रहे हैं दैट इज 44.5 माइनस 54.5 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 10 आएगा, बट बिफोर 10 क्या आएगा, जस्ट टेल, यस साइन ऑफ माइनस, तो -10 आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा होगा, -54.5 है, 44.5 minus 54.5, again 34.5 minus 54.5 which is a assume mean, so what will be the value, -20। fine, and next is -30। तो similarly इस तरह से आपका कंप्लीट DI फाइंड हो जाएगा। लास्ट वन इज -40, कैसे आया, 14.5 which is a midpoint of the class interval minus assume mean 54.5 will give us -40। is this okay? I think it is okay। let us come to x dash। x dash के लिए हमें क्या चाहिए, I क्या है, nothing but the difference between the class intervals। the midpoint of the class intervals आप देखिए 94 और 84 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 मार्क्स का। सेम गोज 84 और 74 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 मार्क्स का। फाइन, इफ यू सी ओवर हियर
यहाँ पे भी इफ़ यू सी 40 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 और 20 के बीच में, 20 और 10 के बीच में, 10 एंड 0 के बीच में। सो एवरीवेयर वी आर सीइंग कि 10 नंबर का डिफरेंस है। अगेन इफ यू सी 89 माइनस 99, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। 79 एंड 89 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। सो देयरफॉर हमारा जो आई है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट it is equals to 10. So difference between the class intervals is 10. तो हमारा I आ गया 10. अब आपको x dash निकालना है. So for x dash what we are going to do, di जो है 40 है यहाँ पे, 40 divide by 10 how much we are getting, correct, 4. 30 divide by 10 how much we are getting, 3. Similarly आप सारे इसको fill करिए. Over here we will get 0. Then it is minus 10 divided by 10 will give us minus 1, correct. Then is minus 2, then is minus 3 and finally minus 4. ठीक है, आप ये मन से नहीं भर रहे हैं, just take care कि everything is done through proper calculation. ठीक है, minus 10 divide by 10 will give us minus 1. सो ये आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डी आई डिवाइड बाय आई. आई की वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स था 10 था. सो देयरफॉर हर एक डी आई जैसे कि 10 डिवाइड बाय 10 विल गिव अस 1. फाइन. तो ये भी आपका आ गया, एक्स डैश भी आ गया है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपके पास है. नाउ लेट अस कैलकुलेट दीज टू थिंग्स. ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज एफ एक्स डैश लिखा है. सो दैट इज एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x डैश की वैल्यू 4 है. तो हाउ मच वी आर गेटिंग, 4 4 जा 16, करेक्ट. नेक्स्ट इज 6 3 जा 12, राइट. 6 2 जा, सॉरी 6 3 जा 18, 6 2 जा 12. देखिए मैं 6 यहाँ से ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी एंड 2 x डैश है हमारा. ठीक है, जस्ट सी ओवर हियर, ये एफ एक्स डैश है. तो अकॉर्डिंगली टेक द नंबर्स एंड मल्टीप्लाई इट. फाइन. 6 1 जा 6. Fine. 8 multiplied by 0 will give us, yes, correct, 0. Fine. So fill this 8 into minus 1 minus 8. Then this 7 into minus 2 will give us minus 14. 7 2s are 14. 3 3s are 9, sign रहेगा minus का, and 4 2s are 8, sign रहेगा minus का because it is minus 4. Fine. And 2. So 2 multiplied by minus 4 will give us 8. Minus 8. Fine. So these are the things. So these are the digits which we got, values which we have got. Fine. अब इन सभी को 16, 18, 12, 6, 0, minus 8, minus 14, minus 9, minus 8, सभी को अगर आप add करेंगे, because we need sigma f x dash. ठीक है, तो इन सभी को add करिए. Tell me how much you are getting the value as. I hope you have got the number. Yes, it is 13. ठीक है, though these are the high numbers. देखिए 16, 18, 12, 6 ये सब है, पर ये सबको ऐड करने के बाद आपने क्या किया है, ये सारे जो माइनस के साइंस है वो सभी को ऐड करिएगा और फिर उसको ये जो टोटल नंबर आ रहा है उससे माइनस करना है. So after doing that, you will get the total number, that is some sigma fx डैश इक्वल्स टू 13. ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको सभी वैल्यूज आ गई है. नाउ जस्ट टू टेल यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि डी का कॉलम बनाया जाए. अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप डायरेक्टली एक्स डैश भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू गिव अ क्लियर पिक्चर कि सिस्टमैटिकली किस तरह से कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी इसी तरह से आप कॉलम्स बनाएं या सेम यही तरह से आप करें. ओके, there are different ways to solve it. Fine. So we got this n also as well as fx dash also. Let us substitute the values in our formula. तो assume mean कितना है हमारा, this is our formula. Fine. तो assume mean कितना लिया था हमने, we have assume mean as 54.5. तो please write over here 54.5. Then make the sign of plus, open the bracket. ब्रैकेट में है ये जो लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स डैश. एफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई है, सी ओवर ईयर 13 आई है सी. ठीक है, तो मेंशन ओवर ईयर, सब्स्टिट्यूट करिए 13, डिवीजन का साइन करिए. एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू जो हमने फ्रीक्वेंसीज को टोटल किया था दिस इज 50. सो राइट ओवर ईयर 50, क्लोज द ब्रैकेट,
मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन का साइन करिए, आई कितना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स कितना है, 10 है, ठीक है। सो राइट ओवर हियर 10। नाउ कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज कि after cancelling 0 from 5 as well 50 as well as 0 from 10, we are getting the number as 54.5, या as it is रखिए, plus 13 by 5, ठीक है। 13 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा ये, विच एवर वे यू डू इट्स ऑल अप टू यू। सो दैट इज 272.5, ठीक है, क्योंकि आपने 54.5 प्लस 13/5 करना है, तो पहले 54.5 इंटू 5 करेंगे, देन प्लस 13 एंड ओवरऑल डिवाइड बाय 5, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीन कितना आता है, प्लीज फाइंड। फाइन, सो हाउ मच यू आर गेटिंग, प्लीज टेल। सो 272.5 प्लस 13 कितना होता है, यस 285.5 एंड अगेन डिवाइड बाय 5। तो फाइनल आंसर कितना आया है आपका, प्लीज टेल। मीन इक्वल्स टू, yes it's correct, 57.1, ठीक है। So sometimes your answers will come in points also, so do not get worried, as per the values which you are getting आपके answers आएंगे, ठीक है। So mean की value हमें आ गई है 57.5। now let us come to the interpretation part। तो ये इंटरप्रिटेशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखना होगा, जस्ट टेक केयर। ऑल्सो ये सारी चीजें मैंने इनिशियली लिखी हुई थी, ठीक है। just take care, you have to write it, कोई लिख के नहीं देगा हमें, in the solution we have to write it right now। for making the video quick, I have written all these things। so interpretation है, mean represents the average of given distribution। ये हम सभी को पता है कि mean क्या होता है, average of any given distribution होता है। to write this particular statement and then write since the mean of the given distribution is, तो यहाँ पे कितना आया है, mention it 57.1, ठीक है। therefore क्या आएगा, most of the scores lie around or concentrate around 57.1 जो हमारा मीन आया है। So in this way we are going to interpret the mean which we have got। Once again I am reading, mean represents the average of the given distribution। Since the mean of the given distribution is 57.1, ये आपको लिखना है, full पूरा interpretation लिखना है properly। Therefore most of the scores, सभी ज़्यादातर scores 57.1 के आसपास है। So if you see over here, हमने assume mean किया था 54.5, पर actual mean कितना आया है, 57.1। Fine, so this is the correct answer। I hope you have understood how to solve mean or how to calculate mean when frequency, class intervals as well as frequencies are given, and also how to interpret the results by using this particular formula, that is mean equals to assume mean plus सिग्मा एफ एक्स डैश डिवाइड बाय एन, ये पूरे को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट इज डेविएशन ऑफ क्लास इंटरवल या डिफरेंस बिटवीन दी क्लास इंटरवल। फाइन, so that's all from my side। I hope you have understood this particular sum solution। Thank you and namaskar।